हेलो एवरीवन, आई एम सेजल अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी तीन स्टोरीज के बारे में दैट आर मेजरली शेपिंग द इंडियन मार्केट्स। सो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई एचएएल शेयर्स फेल शार्पली यस्टरडे आफ्टर द तेजस क्रैश एट द दुबई एयर शो, what triggered the sell off, how the company responded, and why analysts still remain confident about HAL's long term growth story. In the second story, we'll be looking at a major shakeup in the food delivery space because recently there was a news that Magic Pin and Rapido has joined the hands, and whether this partnership can realistically challenge the long-standing Zomato Swiggy duopoly or not. And finally, and in our third story, we'll be covering Indian rupee sudden crash to an all-time low of rupee 89.49, what caused this unexpected move, and what it means for your portfolio in the coming months. So let's dive in and know about each story in full detail. सबसे पहले हम बात करेंगे कि एचएएल के शेयर्स काफी ज्यादा प्रेशर में दिखे यस्टरडे आफ्टर एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एट द दुबई एयर शो इन्वॉल्विंग द तेजस फाइटर जेट। सो बेसिकली जो स्टॉक था वो ओपन हुआ शार्पली लोअर एंड फेल up to 4.3% on the NSE, while BSE पे वो around 9% तक decline किया था. Obviously, it closed around 3% in NSE and it hit a 7-month low on BSE. So, what exactly triggered this reaction was कि last Friday Tejas LCA जो manufactured है by HAL for the Indian Air Force crashed during an aerial display killing the pilot. ये सेकेंड तेजस रिलेटेड क्रैश था, अगर हम देखें इन लेस देन 2 years, जिसकी वजह से एक इमीडिएट नेगेटिव सेंटिमेंट देखा हमने स्टॉक में। डिफेंस पीयर्स की बात करें लाइक डेटा पैटर्न्स, जीआरएसई, पारस डिफेंस, वो भी डाउन थे एंड ऑल्सो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स वाज डाउन nearly 1.5%. But importantly, analysts doesn't see this as a long-term issue. HAL ने भी इस इशू को क्लैरिफाई किया है, कॉलिंग दिस क्रैश एन आइसोलेटेड अकरेंस अराइजिंग आउट ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। HAL ने रीअश्योर किया है कि ये ऑपरेशंस, डिलीवरीज और फाइनेंसेस को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा एंड दिस क्लैरिटी समवेयर हेल्प्ड काम इन्वेस्टर्स नर्व्स एंड स्टेबलाइज द स्टॉक इंट्राडे। ब्रोकरेज रिएक्शंस की बात करें तो उन्होंने काफी क्विक रिएक्शन दिया बट दे रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक। इलारा कैपिटल ने अपनी बाय रेटिंग को मेंटेन किया, noting that the fighter aircraft crashes are not uncommon globally and that the Tejas Mk1 is unlikely to be grounded since the mishap occurred during an air show and not in active combat. And they see no financial impact, although exports में एक minor delay देख सकते हैं, domestic demand फिर भी strong है। CLSA ने भी इसको काफी ज्यादा confidence से deal किया। Starting with the volatility is a buying opportunity given HL massive $54 billion order pipeline. Also, कुछ possible causes हो सकते हैं like engine thrust loss to negative G stall और pilot error, जो इस reason के जो इस situation के पीछे के reasons हो सकते हैं। Broad market commentary को देखें तो यही दिख रहा है कि एक शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी काफी ज्यादा नेचुरल है अभी इस स्टॉक में, स्पेशली आफ्टर द क्रैश ऑन अ ग्लोबल स्टेज। हाउएवर एनालिस्ट की देखें तो एचएल के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है। Strongest ever order books, 97 new Tejas MK1A orders. Unless एक structural design flaw confirm होता है या कोई long term valuations intact रहेंगी and कोई भी decline जो है it would be viewed as an opportunity rather than a setback for the long term investors. Despite ये जो short term sentiment hit था from the Tejas crash, HL की long term story काफी ज्यादा intact है. It's backed by a strong order book. Also expected order book है उसके around 2.7 lakh crores for FY27. Near complete price stocks for 113 new GE engines and a multiple growth drivers for the future as well. नाउ अपनी सेकंड स्टोरी में हम देखते हैं कि एक काफी बड़ा शेकअप देखने को मिल रहा है फूड डिलीवरी स्पेस में बिकॉज मैजिक पिन और रैपिडो ने अपनी पार्टनरशिप अनाउंस करी है और इसकी वजह से काफी बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये रियलिस्टिकली चैलेंज कर पाएंगे जोमैटो और स्विगी की डुओपोली को। इसके लिए वी कैन सी कि अभी ये जो डील है ये इसको इतना ज्यादा टेंशन इसलिए मिल रहा है बिकॉज इट गिव्स रैपिडो न्यू फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ओनली a nationwide boost by integrating Magic Pin's 80,000 plus restaurants network. Also, ये जो पार्टनरशिप है ये डायरेक्टली टारगेट करती है दो बड़े कॉस्ट सेंटर्स को फूड डिलीवरी में। सबसे पहला है लोअर रेस्टोरेंट कमीशन बिकॉज रैपिडो जो है वो अभी चार्ज करता है रेस्टोरेंट से काफी ज्यादा कम कमीशन कंपेयर टू जोमैटो एंड स्विगी। और लोअर कमीशन का मतलब है रेस्टोरेंट्स पे काफी ज्यादा कम प्रेशर है टू इन्फ्लेट द मेन्यू प्राइसेस, potentially cheaper food है for consumers and better margins for eateries.
सेकेंडली अगर हम देखें तो एक चीपर और डेंसर लॉजिस्टिक्स है, बिकॉज मैजिक पिन का जो वेलोसिटी प्लेटफॉर्म है वो एक लॉजिस्टिक एग्रीगेटर की तरह काम करते हैं, जहां पर वो एग्रीगेट करते हैं रैपिडो, पोर्टर, ओला और काफी सारे दूसरे डिलीवरी पार्टनर्स को। ऑल्सो ये रैपिडो को एक काफी बड़ा लार्ज राइडर पूल भी देता है बिकॉज ऑफ बेटर रूटिंग, लेस आइडल टाइम, हायर डिलीवरी डेंसिटी एंड लोअर पर ऑर्डर कॉस्ट। बट रियलिस्टिकली जोमेटो और स्विगी की डुओपोली को ब्रेक करना इजी नहीं होगा, क्योंकि फूड डिलीवरी एक काफी ब्लीडिंग मार्जिन बिजनेस है, हम बोल सकते हैं। साथ ही में कस्टमर लॉयल्टी काफी ज्यादा हाई हो चुकी है अभी जोमेटो और स्विगी के पास। ऑल्सो स्पीड, रिलायबिलिटी, कवरेज, ये कुछ बेंचमार्क्स हैं जो कंपनी को ध्यान में रखने पड़ेंगे। एंड रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी काफी ज्यादा स्प्रेड आउट है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे। इंसेंटिव बर्न जो है वो क्विकली डिस्ट्रॉय कर सकता है प्रॉफिटेबिलिटी को। और कंज्यूमर्स जो है वो ट्रस्ट करते हैं जोमेटो और स्विगी को, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी के लिए और डिलीवरी स्पीड के लिए। तो शिफ्टिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। हाउएवर इस पार्टनरशिप के भी अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक्स देखें तो काफी ज्यादा टिक्स हैं। 80,000 प्लस रेस्टोरेंट्स हैं, नेशन वाइड ग्रो कर रही है, एक लॉजिस्टिक सिस्टम है जो कि डिजाइंड है अराउंड मल्टी पार्टनर एफिशिएंसी, कमीशंस काफी कम है जिसकी वजह से लोअर प्राइसेस भी हम देखने को मिल सकते हैं। तो इन थ्योरी ये कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली चैलेंज तो कर सकता है, बट इट्स अ सीरियस थ्रेट। बट स्टिल काफी ज्यादा चैलेंजेस कंपनी को खुद भी फेस करने को मिलेंगे। ऑल्सो ये जो पार्टनरशिप है ऑन पेपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, बट we have to see that is this enough to overcome years of brand loyalty, superior network density, and deep operational experience built by Zomato and Swiggy. Now let's move to our third and last story, which is कि इंडियन रुपी ने हिट किया है रिकॉर्ड लो ऑफ 89.49 रुपी अगेंस्ट द यूएस डॉलर, एंड व्हाट द सडन क्रैश मीन फॉर योर पोर्टफोलियो। सो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये जो फॉल हुआ, क्यों इसने मार्केट्स को शॉक किया? बिकॉज ये कोई ग्लोबल रिस्क इवेंट नहीं था, कोई क्रूड स्पाइक नहीं थी, इवन ये कोई डॉलर मूवमेंट भी नहीं था। अकॉर्डिंग टू सीआर फोरेक्स एडवाइजर्स, ये जो रूपी फॉल था इट स्टूड आउट बिकॉज डॉलर इंडेक्स फ्लैट है, क्रूड ऑयल प्राइसेस मूव नहीं किए, ईएम करेंसी स्टेबल है, एंड ग्लोबल क्यूज वर काम। सो व्हाट कॉज द शार्प ड्रॉप इज थिन डॉलर सप्लाई प्लस एग्रेसिव बाइंग, जिसकी वजह से एक सडन लिक्विडिटी गैप क्रिएट हो गया। और सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि आरबीआई ने भी इसमें स्टेप नहीं किया कि वो डिफेंड करे 88.8 का लेवल, ट्रिगरिंग द स्टॉप लॉसेस एंड एक्सेलरेटिंग द फॉल। जो रिकॉर्ड वीक रुपी हमें देखने को मिला है इट टिपिकली ट्रिगर्स रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, स्पेशली इन द ब्रॉडर मार्केट। राहुल कलंतरी जो मेहता इक्विटीज के, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो रीजन है ये जनरेट कर रहा है हायर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, राइजिंग कॉर्पोरेट इनपुट कॉस्ट, मार्जिन प्रेशर ऑन इंपोर्ट हेवी सेक्टर्स एंड श्रिंकिंग डॉलर एडजस्टेड एफआईआई रिटर्न। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो उन्होंने इसको एक टेम्परेरी स्केयर बोला है rather than the start of a long downtrend. वीके विजय कुमार जो जियोजी फाइनेंशियल से है, उन्होंने बोला कि ये जो डेप्रिसिएशन है इट इज अनलाइकली टू इम्पैक्ट द मार्केट्स मीनिंगफुली, स्पेशली बिकॉज वैल्यूएशन कूल डाउन हो चुकी हैं फ्रॉम देयर पीक। ही एक्सपेक्ट्स कि एफआईआई again they will turn into the buyers as the global AI trade cools and Indian earnings visibility improves. Akshat Garg of Choice Wealth adds that any correction should remain shallow as long as macros stay stable. तो आगे आने वाले कुछ महीने जो है इट विल बी हिंज ऑन सेवरल की ट्रिगर्स, पोटेंशियल इंडिया यूएस ट्रेड डील कैसी होती है, दैट शुड नैरो डाउन द ट्रेड डेफिशिएट, सॉफ्टर क्रूड प्राइसेस, कूलिंग डॉलर, एंड आरबीआई स्टेपिंग इन टू कर्ब द एक्सेस वॉलिटिलिटी। और अगर ये सारे फैक्टर साइड में अलाइन होते हैं तो एनालिस्ट believe that the rupee could stabilize over the next 3 to 4 quarters, but for now though टेक अवे काफी क्लियर है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन रियल है, बट इंडिया का जो लॉन्ग टर्म मैक्रो स्टोरी है इट स्टिल रिमेन्स फर्मली इंटैक्ट। So that was all for today's market wrap. On one side, we covered sharp fall in HAL shares, which shows that how sensitive defense stocks can be. And एक headline की वजह से इतना ज्यादा हमें मूवमेंट देखने को मिला। दूसरी तरफ हमने कवर किया मैजिक पिन और रैपिडो की पार्टनरशिप, जो कि एक काफी बोल्ड अटेम्प्ट है इंडिया के फूड डिलीवरी मार्केट में, जो कि ऑलरेडी एक डुओपोली से कवर्ड है। एंड फाइनली रूपी का सडन क्रैश हमने देखा दैट हैज स्पूक्ड द मार्केट, बट एक्सपर्ट्स लार्जली सी इट एज अ शॉर्ट टर्म एब्रेशन। So tell me, what do you think about today's story? Do like and share our video, and I'll see you tomorrow with another market updates in the daily market rundown episode.